हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਵੇਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ चलते हैं, जो कलाम ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, जो मेरा कहना ਮੰਨਦੇ, जो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, जो आपने मुझे दिए, मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँ, संसार के लिए नहीं। और परमेश्वर कह रहे तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख, उस दुष्ट ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬਲੈਸ ਆ ਅਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਹੰਨਾ 17 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਆਇਤ ਤੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। अपने चेलों के लिए की कर रहे, अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे परमेश्वर। यूहन्ना 17 अध्याय ਨੂੰ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੋਰ ਪੜਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, रोमियो 8 अध्याय ਉਹਦੀ 34 आयत ਦੀ छोटी जी आयत ਨੂੰ पढ़ांगी। हमारे लिए निवेदन करता रहता है कौन? प्रभु यीशु मसीह पिता दे दाहिनी ओर ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ? निवेदन विनती करते रहते, परमेश्वर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ माफ कर। निवेदन करते परमेश्वर ਲਈ। प्रभु यीशु मसीह ਸਾਡੇ याजक है, ਵੱਡਾ याजक, सब तो पहलौठा, सब तो ਵੱਡਾ याजक जो है प्रभु यीशु मसीह। पहली आयत, इस छोटी जी आयत में मैं पढ़ती, फिर उस तो बाद 6 तो रह के सुखप्रीत संदीप दोनों ਵਿੱਚੋਂ कोई भी पढ़ना, ਇਹਨੂੰ 9 तक पढ़ना, ठीक है। पहले मैं इस आयत ਨੂੰ पढ़न जा रही हूं जिथे लिखा है रोमियो 8 अध्याय और 34 आयत ਨੂੰ। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर के दाहिनी ओर हमारे लिए निवेदन करता रहता है। हमारे लिए, किसी ने निकाले पंजाबी दी बाइबल च की लिखा है थोड़ा जा, हमारे लिए निवेदन करता रहता है। हालेलुया। सिफारिश, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाँ, साढ़े लिए सिफारिश करते हैं। जो मुर्दियां जो जी उठे, जो एक संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਦੁੱਖ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪੜਾਂਗੇ ਯੂਹੰਨਾ 17 ਦੇ 6 ਆਇਤ ਨੂੰ ਤੇ 9 ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੈਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ एक फोन बंद कर दो, एक फोन का ना माइक वगैरह सब कुछ बंद कर दो, फिर आवाज नहीं गूंजेगी। 2 फोन चलाने। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੈਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਭਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭੋ ਤੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਨ। हालेलुया। पढ़ ले ਇੱਥੇ ਤੱਕ। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। इथे लिखे अपने चेलों के लिए की कर रहे प्रभु यीशु मसीह, अपने चेले ने। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ यीशु मसीह ਦੇ चेले हैं। अपने चेलों के लिए, ਮੈਨੂੰ बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया, वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। हुन वचन नु मनन वालियां ਲਈ परमेश्वर प्रार्थना कर रहे प्रभु यीशु मसीह, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੀ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ मसीह ने सानू बुलाया। हालेलुया। लिखे ना, उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। मैं प्रभु यीशु मसीह साडे को वचन जो प्रभु यीशु मसीह धरती ते आए सी, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया सी। जेडे चेलियां नूं प्रभु यीशु मसीह ने दस्सिया सी, उन्होंने उस वचन नूं मान लिया। की मान लिया? अनंत जीवन यह है कि वह मुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, जाने। पतरस ने जानिया, यूहन्ना ने जानिया, पौलुस ने जानिया, ठीक है, किने जानिया? एकमात्र की सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह साडे को भी कोई वचन लेके आया सी, असी विश्वास किया, असी परमेश्वर दे चेले कहलाए गए, एवेंजलिस्ट कहलाए जाते, असी सुसमाचार सुनाते हैं। गुड न्यूज एंड गॉड ग्रेस, गुड न्यूज सुनाई जा रही है, खुशखबरी सुनाई जा रही है, सुसमाचार दी लाइफ नू चेंज किया जा रहा है, और नाल ही परमेश्वर दी ग्रेस भी आ जाती है। हालेलुया। दूसरे साथ से लिखे, अब वह जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है। हुण प्रभु यीशु मसीह नूं की दिता? प्रभु यीशु मसीह नूं सब कुछ दिता होया। प्रभु यीशु मसीह सब चीज़ां दे उत्ते अधिकारी। प्रभु यीशु मसीह लई सारियां चीज़ां सिरजियां गईयां। हालेलुया। इस आयत नूं मैं पढ़दी, पहली कुलूसियो ओदा पहला अध्याय 15 और 16 आयत। वह तो अदृश्य परमेश्वर की प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोठा था। प्रभु यीशु मसीह पहलोठे है, सारी सृष्टि में पहलोठा। और लिखा 16, क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं सिरजी हुई हैं, उसी में सारी वस्तुएं बनी हैं। की बने हैं? स्वर्ग की हो अर्थात पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधान, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा, उसी के लिए सिरजी गई हैं। हालेलुया। पंजाबी कोई पढ़ेगा इनू? ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਾ ਅਰਥਾਤ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਠਾ ਹੈ, ਭਈ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ। 16 भी ਬਾਅਦ ਜੀ 17 18 ਪੜ੍ਹੀ, 16 ਵੀ ਪੜਾ। हाँ 17 18 नहीं पढ़नी सीगी, 15 और 16 पढ़नी सी पहली क्लूस। 15 16 मैं 18 ਪੜ੍ਹਦੀ, ਸੌਰੀ ਪਾਸੇ ਜੀ। ਉਹ ਅਲਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਉਤਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੇ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੀ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਕੀ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਕੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ, ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह लिए सिरजा गया, प्रभु यीशु मसीह लिए बनाया। कि प्रधान, क्या स्वर्ग, क्या पृथ्वी, लिखा ना, क्या स्वर्ग, क्या प्रधान, क्या पृथ्वी, क्या सिंहासन, क्या देखी क्या अनदेखी वस्तुएं, और क्या अधिकारी, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सिरजी गई हैं, उसी के द्वारा, उसी के लिए सिरजी गई हैं। वचन वचन बोलिया गया सी ना, सिरजी गई हैं। उन्हें ऐसी 7 च ही पढ़िया ना। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है। मतलब सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने दिता है। मौत और जिंदगी दियां कुंजियां भी प्रभु यीशु मसीह कोल ही है। मौत और कुंजियां, सब कुछ, सारी सृष्टि की हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह दे अंडर है। पिता परमेश्वर ने उन्हां लई बनाईयां और उन्हां लई ही सिरजियां गईयां। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਤੋਂ ਹੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
हर किसी ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, नाम लेके बुलाया है। और प्रभु यीशु मसीह साडे लिए दुआ कर रहे है ना, अपने चेलों के लिए। बहुत ब्लेस है कलाम, बहुत ही ब्लेस है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਰ ਸੀ ਇਸ 9 ਤੋਂ 19 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਆਨੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, बहुत कुछ। 8 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिया मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया और उन्होंने उसको ग्रहण किया, सच सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से आया हूं, विश्वास कर लिया कि तू ही ने मुझे भेजा है। हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਆਏ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਤੇ ਲਟਕਾਏ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਸੱਚ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਇੱਕਮਾਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤੂਨੇ ਮੁਝੇ ਦਿਆ ਮੈਨੇ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਨੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਨ ਫਿਰਾਓ, ਅਨੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਤਰਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 9 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, मैंने उनके लिए विनती करता हूं। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵਿਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता। परमेश्वर संसार लिए विनती नहीं कर रहे, वो अलग अलग टॉपिक है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र वार दिया, वो अलग टॉपिक है। पर इत्थे परमेश्वर साडे लिए की कर रहे हैं? याजक बन के साडे लिए मध्यस्तर दा काम कर रहे हैं, निवेदन विनती कर रहे हैं। याजक है साडे, जो पहलोठा स्वर्ग च बैठे हैं। मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए नहीं, परंतु उनके लिए जीने तूने मुझे दिया, क्योंकि वे तेरे हैं, जिन्हें तूने मुझे दिया। हुण परमेश्वर ने, असी परमेश्वर ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। 15 यूहन्ना 15 ਦੀ 16 ਇਹ ਤੋਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਬੱਚੋਂ। हालेलुया। क्योंकि मैंने जो नहीं, 16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। है ना? विनती चुनिया होया ਲਈ विनती कर रहे हैं कि सारे संसार ਲਈ विनती कर रहे हैं। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ स्वर्ग जाना है कि चुने हुए जाने? सद्दे ਤੇ बुलाए बहुत है, पर किने जाना है? कुछ चुनिया होया नहीं जाना है ना। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ 19 ਤਰੀਕ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਸੀਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜੋ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਰਯੋਦੈ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਤੀ 3 ਵਜ ਗਏ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਆਇਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ।
ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਨ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। हालेलुया। लिखिया ना कि जिन्हें तूने मुझे दिए क्योंकि वे तेरे हैं। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਰੂਪ ਚ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਬੁੱਧ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਸਮਝ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ने सानू नाम लेके बुलाया, मेरा नाम जानते। बाइबल में हमेशा ही कहते थी, गर्भ में रचने से पहले मैंने तेरे ऊपर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ। परमेश्वर ਤੇ चुनिया हुए वाली प्रार्थना कर रहे। उन्हीं पढ़े ना, संसार के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए जो तूने मुझे दिए। हालेलुया। 11 पॉइंट जड़े, मैं अब जगत में ना, सॉरी 10 रह गई। और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है। बड़े ध्यान से पढ़ना बहुत। इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई, इससे मेरी महिमा प्रकट हुई। मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, पर ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਣੀਆਂ ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਣੀ ਹੈ। हालेलुया। और मैं तेरे पास आता हूं हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, इनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो जाएं। हमारे समान एक हो जाएं, इनकी रक्षा कर। प्रभु यीशु मसीह साडे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर यहोवा मेरे लिए, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ प्रार्थना कर रहे हैं कि ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ रक्षा लिए। 11 आयत ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਆਰਾ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੀ हैं। मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे। परंतु ਅਸੀਂ जगत ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ में कलेश होगा, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਗੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਗੀਆਂ, ਹਨਾ। मैं तेरे पास आता हूं। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, परमेश्वर ਦਾ आत्मा, वो अलग है। और हे पिता, मैंने उस नाम को जो तूने, ਹੁਣ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ? यूहन्ना 10 अध्याय 30 ਦੇ ਵਿੱਚ, यूहन्ना 10 अध्याय 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। मैं और पिता एक है। लोग की डिफरेंस लभते रहते हैं। पिता कहते प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता परमेश्वर को देख लिया। 10 दी 30 लिखा है, मैं और पिता एक है। हालेलुया। अलग नहीं। जिन्हें पिता परमेश्वर यीशु मसीह ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ एकमात्र परमेश्वर लिखा है, वह मुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जो यीशु मसीह है जिसे तूने भेजा है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आगे लिखिए, उनकी रक्षा करके वे हमारे समान एक हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कितनी फिक्र सीगी साडी, कितनी फिक्र है। एक तो पवित्र आत्मा दिता, गैर जुबान दिता, फिर उतो रक्षा लिए भी प्रार्थना कर रहे, साडी रक्षा लेके इन्हां दी रक्षा कर। हालेलुया। कितने ब्लेस असी। पहला पतरस पहला अध्याय उदी 5 आयत नूं पढ़ना। ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਉਸ दोनों ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ जिनको ਪ੍ਰਾਪਤ खोल ਹੋਣ। दो, या नु क्लोज कर दो, नु ओपन ना करो, बार बार ਇਹਨੂੰ प्रॉपर्ली कर दो क्लोज, ਇਹਨੂੰ क्लोज कर दो, या दी माइक सब कुछ क्लोज, क्योंकि मेरे को भी फोन ਹੁੰਦੇ ਦੋ सब कुछ बंद करना ਪੈਂਦਾ है। हाँ जी, ਹੁਣ बोलो। ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ ਜੋ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਚਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। बचाए रहंदे हो, हमेशा बचाए जाते हैं। मतलब
बचाए रहिंदे हो अंत दे समय तक। मैं हिंदी दे विच पढ़ांगी। जिनकी रक्षा, हाउ स्ट्रेंज, मेरी आवाज आ आवाज आ रही? रही? कोई कोई ना ना छेड़ दिंदा है। हालेलुया। सॉरी, कोई डिस्टर्बेंस हो जाती। मैं बहुत बार देखिए ਜਿਹੜੇ co-host ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ co-host ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, गॉड ब्लेस यू। उनकी रक्षा परमेश्वर की, केना दी रक्षा लिखे, जिनकी रक्षा परमेश्वर की, जिनकी रक्षा, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा, सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होगा की जाती है। आने वाले समय तक, जिन्नी देर तक आंदा नहीं, उन्हां दी रक्षा की जाती है। मैं फिर दोबारा बोलने जा रही, बड़ी ब्लेस आयत है। जिनकी रक्षा, पतरस कह रहे हैं जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ, एक परमेश्वर की ताकत और विश्वास, जेडे परमेश्वर ते विश्वास करते हैं, उस उद्धार के लिए, उस उद्धार लिए, असि उद्धार लिए बैठे थे, संसार की बरकत वाले नहीं, उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होगी की जाती है। साड़ी रक्षा की जाती है। जिन्नी देर तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे, साड़ी रक्षा हो रही है। कलाम थोड़ा टफ है। उन्होंने रक्षा हो रही है, लिखे ना, उनकी रक्षा करके वे हमारे समान एक, मतलब प्रभु यीशु मसीह के जिन्नी सामर्थ और विश्वास के द्वारा उद्धार आने वाले समय तक, जिन्हें देर तक प्रभु यीशु मसीह ने दी साड़ी रक्षा की जाती है स्वर्ग दूतां दे द्वारा। हालेलुया। इस आयत ਨੂੰ बार-बार पढ़ना बड़ा ब्लेस और समझन वाला कलाम है। बार-बार आयतां ਨੂੰ पढ़दा मैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जिहा हैगा। हालेलुया। 12 आयत ਨੂੰ पढ़न जा रही हैं। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरा नाम उनसे जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा की। प्रभु जितनी देर तक प्रभु यीशु मसीह सीगे, प्रभु यीशु मसीह ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, 12 ਚੇਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਵੀ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ कि उनकी रक्षा की मैंने उनकी चौकसी के, परमेश्वर ने बड़े ना चौकसी के साथ उनकी रक्षा की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। हालेलुया। इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कुछ कहा गया वह पूरा हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पूरे तरीके ना अपनी जान दे के उन्हां दी रक्षा की, चौकसी की, ध्यान नाल परमेश्वर पवित्र आत्मा दी सामर्थ दे विच चलदे गए। हालेलुया। पवित्र आत्मा दी परमेश्वर सामर्थ, बाइबल च लिखे ना रसूलों दे, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी का पवित्र आत्मा सामर्थ से अभिषेक किया, वह भला करता है, शैतान के सताए हुए को चंगा करते हुए। प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में बहुत मतलब समझदारी ना चले, चौकसी ना चले। जो लाजर में मरना सी 3 दिन उत्थे ही रहे। फिर उस तो बाद जो प्रभु यीशु मसीह के ब्रदर ने कहा जा यरूशलेम दे विच, कहंदे मेरा समा नहीं आया, छुप के जांदे सी, बड़ी समझदारी ना चलदे सी, चौकसी ना प्रभु यीशु मसीह चलदे सीगे, जल्दबाजी नहीं करदे सी। प्रभु यीशु मसीह ने जो चेले चुनने सी ना, सारी रात प्रार्थना की सी, फिर चेले चुने सी।
प्रार्थना चौकसी नाल, सानू भी चौकसी नाल चलना है। और सिर्फ उस विनाश का पुत्र एक नाश होया सी, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस नू की कहता सीगा, हालेलुया। पतरस ਲਈ परमेश्वर ने निवेदन विनती प्रार्थना की सी ना कि परमेश्वर ਇਹਦਾ विश्वास ना जाए पढ़ना मती दे विच। कहने मैं तेरे लिए पतरस तेरे लिए बिनती करता पिया, प्रार्थना करता, मैनू लभनी पैनी पर पढ़ी हुई है मैं आयत कि तेरा विश्वास ना जाए। जब तेरा विश्वास चला जाए तू वापस मुड़े ते अपने भरावां नू भी मोड़ी। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की सीगी, प्रभु यीशु मसीह साडे लिए प्रार्थना करते। हालेलुया। सिमरन सुप्रीत 13 तो लेके 14 पढ़ना। सॉरी, एडी यूहन्ना 12 13 14 15 तक पढ़ दो। एक मिनट। हालेलुया। हाँ जी। ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, 15 तक पढ़ दो। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਵੇਂ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। हालेलुया। हालेलुया। 13 नु पढ़न जा रही है। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वह मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। आनंद पाना। प्रभु यीशु मसीह दे जान तो बाद किन्ने जने परेशान होए हुए ने, किन्ने जने बैक होए हुए ने। हुण आनंद ते प्रभु यीशु मसीह दे विच ही है ना। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਆਨੰਦ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। आनंद चोरी होना, आनंद चोरी हो जाता। लिखा ना, अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦਾ आनंद अपने ਵਿੱਚ पूरा पाना है। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗਰਮਾਹਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅੱਜ ਅੱਗ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਹਿੱਲਣ ਨਾਲ, ਉੱਚੀ ਪਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। क्वेश्चन पुट कर रही हूं मैं। नो, पवित्र आत्मा हमेशा साडे अंदर होंदे। एक बार सानू मिल गया, महसूस करना डिपेंड है। स्टार्टिंग साडे को संभाल नहीं हुंदा क्योंकि सानू पता नहीं हुंदा। ਅਸੀਂ कंट्रोल भी कर सकते ਹੁਣ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੰਨਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਹੋਲੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਰਾਤੀ 2-2 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਾਂ, ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਾਂ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਹਾਲਾਤ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਤੇ ਕਦੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਪਾਣ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ, ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਸੌਂਦੀ, ਉਹ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋ ਹੀ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਅੰਦਰ, ਆਨੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। हालेलुया। 14 लिखिया, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे वैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वह भी संसार के नहीं है। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ स्वर्गवासी हैं। भजन से लिखा है,
हे परमेश्वर, कोई क्यों कहने पाए तेरा परमेश्वर कहाँ है? हे परमेश्वर, अपने स्वर्गवासियों की प्रार्थना सुन। ਅਸੀਂ स्वर्गवासी हैं। दाऊद कहता परमेश्वर अपने अभिषेक की प्रार्थना सुन। दाऊद कहता हे परमेश्वर अपने स्वर्ग के पुत्रों की प्रार्थना सुन। ਅਸੀਂ स्वर्ग ਦੇ हैं, ਅਸੀਂ स्वर्ग ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ स्वर्ग ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, स्वर्गवासी ਹਾਂ। मेरी आत्मिक सिस्टर्स है। स्वर्ग, परमेश्वर, संसार च मेरा कोई रिश्ता नहीं, पर मेरी परमेश्वर इस स्वर्ग दी भैन है। आत्मिक भैन, स्वर्ग दी भैन। संसार दे रिश्ते पिछे रह जाते पे। संसारिक रिश्ते जो आत्मिक रिश्ते अगे सब तो फर्स्ट नंबर थे। हालेलुया, लिखिया ना। और संसार ने उनसे वैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं है। इसलिए मैनू 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 वो रिस्पैक्ट नहीं मिल रही, मैनू इज्जत नहीं मिलती। जब बाइबल च लिख देता कि ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈਏ? ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈਏ? ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਮੀਦ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। जैसे मैं संसार का नहीं, ये भी संसार दे नहीं। ये परमेश्वर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ स्वर्ग की उत्पत्ति तो ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬਰਕਰਾਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਯਹੂਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਾਉਲ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਇਆ। ਡਿਪੈਂਡ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। डिपेंड परमेश्वर कदी किसी ने जबरदस्ती नहीं करते। परमेश्वर कदी किसी ने जबरदस्ती नहीं करते। परमेश्वर आदम ਨੂੰ रोक नहीं सकते ਸੀਗੇ ਫਲ ਨਾ ਤੋੜ, परमेश्वर ने जबरदस्ती नहीं की। परमेश्वर ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ, परमेश्वर ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਸੀ? परमेश्वर ने ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। डिपेंड अपने ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ फटाफट दोष लगा ਦਿੰਦੇ, समझदारी ना चलो, दोष ना लगाओ। हालेलुया। 15 आयत, मैं ये विनती करता हूं, फिर परमेश्वर साडे लिए विनती कर रहे हैं। मैं ये विनती करता हूं कि तू उन्हें जगत में से उठा ले, परंतु ये नहीं कि तू उन्हें उस शत्रु से बचाए रख। परमेश्वर ये नहीं कह रहे कि सानू उठा लो, सानू इस धरती ते रहना है, दुख परेशानियां सारियां झेलनी है, पर लिख रहे तू उन्हें, परमेश्वर उन्हें उस शत्रु से बचाए रख। मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, जहां कहीं जाए वो रक्षा करे, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। परमेश्वर अपने दूतों को की देंगे, आज्ञा देंगे, अपने डरवैयों के चारों तरफ परमेश्वर के दूत रहते हैं। वचन संहिता 34 लिखे हैं, डरवैया के चारों तरफ स्वर्गदूत रहते। तूने उस दुष्ट से बचा रख। परमेश्वर सानू बचा के रख दे। बाइबल च लिखा है जो तुम्हें छूता वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। बाइबल दी आयत है, परमेश्वर सानू बचा के रख दे है। हालेलुया। कोई सानू छू नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर साडे लिए निवेदन विनती प्रार्थना करते हैं। याजक है, पढ़ांगे इब्रानियों 14 अध्याय। याजक है, मैं पढ़न जा रही हूं इब्रानियों 4 अध्याय ओदी 14 आयत नू। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर आया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम उसके अंगीकार को दृढ़ता से सामने रहे। परमेश्वर के अंगीकार नु दृढ़ता ना संभाल के रखिए, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना होता हो। मैं इस आयत तो सीखा सीगा, दुखी ना होता हो। जे असी होंदे ते परमेश्वर होंदे, जे असी खुश है परमेश्वर खुश है, जे असी परेशान है पर लिखे ने थे हमारे साथ दुखी ना हो सके। परमेश्वर साडे नाल दुखी हुंदे है, परेशान हुंदे है, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह साडे समान परखे गए।
प्रभु यीशु मसीह भी परखे गए, प्रभु यीशु मसीह ते भी परीक्षावां आईयां, परीक्षावां आईयां तो भी निष्पाप निकला, असी भी निष्पाप निकलना है। 16 इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हिया बांध के चले। मतलब मैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹਿਆ ਬਾਂਧ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਿਆ ਬਾਂਧ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। लिखिए ना, आओ इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध के चले कि हम पर दया हो। दया ते सारे जांदे पर अपने काम किदां दे है? खड़े हैं ਅਸੀਂ ਹਿਆ बांध के खड़े कि ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਹਿਆ बांध के खड़े कि ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਿੰਮਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। फिर परमेश्वर की करोगे साढ़े उत्ते दया करोगे, अनुग्रह करोगे, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है, जो साड़ी सिचुएशन प्रॉब्लम साड़ी मदद सहायता करते हैं। महायाजक है, लिखे ना, बड़ा बड़ा महायाजक प्रभु यीशु मसीह है जो परखे गया साढ़े लिए निवेदन विनती प्रार्थना करते हैं कि असी ओ ना होइए। हालेलुया। डिपेंड ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਨਿਵੇਦਨ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਲਿਖੇ ਤੂੰ उन्हें उस दुष्ट से बचा रख। परमेश्वर दुष्ट ਤੋਂ बचा के ਰੱਖਦੇ ਸਾਨੂੰ। हालेलुया। लिखे हैगा परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर रखेगा और दुष्ट से तुम्हारी रक्षा करेगा, उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर सानू उस दुष्ट तो रक्षा करते हैं, सुरक्षित रखते हैं कि कभी सानू छू नहीं सकता। प्रोटेक्शन होंदी साडे चारों तरफ, स्पिरिट सानू छू नहीं सकदियां। पर जे असी 91 ज़बूर असी प्रार्थना दे विच है, परमेश्वर नाल पवित्रता नाल चल रहे हैं, ते फिर सानू मजाल है कोई छू भी सकेगा? कोई नहीं छू सकता। जिन्ने दो तरीके नाल शैतान सुन छुंदा है, एक ते असी पाप किया या गलती की या मूंह दा अंगीकार साडा गलत, फिर और दूसरा परमेश्वर सानू कई बार जज करदे कि इहदा विश्वास किन्ना, मैं टेस्ट करा इनू, टेस्ट करा इनू, चेक करा। हालेलुया। 16 जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। कितनी बार परमेश्वर ने कह दिता? 3 बार क्या? जैसे ये संसार के नहीं, मैं भी संसार। 3 बार सानू स्वर्ग दा इत्थे मिलिया। और परमेश्वर दा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? परमेश्वर ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਛੇ ਤੇ ਲੱਗੇ परमेश्वर ਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, परमेश्वर ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ परमेश्वर ਦੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ, प्यार ते आ रही है, एक परमेश्वर दी प्रोटेक्शन नजर आ रही है और एक परमेश्वर दी देखभाल नजर आ रही है कि परमेश्वर साडी कितनी देखभाल कर रहे, परमेश्वर सानू कितना प्यार कर रहे। प्यार ही है ना, इन्हां दी रक्षा कर, इन्हां दी रक्षा कर, मैं इन्हां लई निवेदन कर रहा, इन्हां दी 2 बार ते रक्षा आ गया, फिर मैं जिन्नी ते सीगा मैं इन्हां दी रक्षा कर रहा सीगा, है ना, तो इन्हां नू बचा के रख, तू मैनू दिता है मेरे। अब असीं अपने बच्चों की कितनी प्रोटेक्शन करते हैं। परमेश्वर ने प्रभु पिता परमेश्वर यहोवा दे अगे प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं हुण जा रहा है, इन्हां ने इस संसार दे विच रहना है, इन्हां दी इस तरीके नाल प्रोटेक्शन करी, इस तरीके नाल संभाल के रखना, दुष्ट तो संभाल के रखना। हालेलुया। 17 और 18 और 19 सुखप्रीत पढ़ना। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਨਿਰਾ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਚਾ ਕਰਨਗੇ। हालेलुया। भी पढ़ता आगे बताता सुखप्रीत। हालेलुया। सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा।
सत्य ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, सत्य तो ਅਸੀਂ आजाद ही नहीं दे, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਭਰਮਾਏ ਜਾਂਦੇ, बड़े इजीली ਭਰਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सत्य जानते ही नहीं है, सच्चाई की है। सच्चाई, मेन सच्चाई साडा उद्धार है, ਅਸੀਂ उद्धार ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें आजाद करेगा, तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का एक एक पवित्र शास्त्र लिखिया वचन एक एक सत्य है, जो पूरा होया, जो पवित्र शास्त्र ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु यीशु मसीह ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਆਪ ਲੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਇਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ। उस टाइम मैंने नॉलेज नहीं सी कि बाइबल स्टडी किद्दां करनी होंदी, पर मैं आप बाइबल स्टडी करती सी। प्रभु यीशु मसीह दी भविष्यवाणी है, प्रभु यीशु मसीह यहोशू को आया है, चाहे दूध होंदा सी मैं ते प्रभु यीशु मसीह लिख दिंदी सी। कितने कितने प्रभु यीशु मसीह, उत्थे मैं आप पुरानी बाइबल खोलती उत्थे मैं आप लिखा यीशु मसीह, मैं बाइबल ही करैक्ट कर देती सी। कर मैं कि नाम सेम मिलते इतिहास बाद चो मैनू अकल समझ आई, नहीं नाम सेम नहीं, मैं कि बाइबल गलत छाप दी। एक सभा आया मैं इदा क्या जो मैं इतिहास पढ़ रही सी, मैं कि नहीं बाद चो समझ आया कि वो जो दोबारा पढ़ी फिर मैंने हो गया नहीं सेम ना आते सी। मैं कहती सी इजरायली यहूदी च बहुत कंफ्यूज होंगे जो इतिहास पढ़ते हैं, सानू सेम सेम नाम लगते, समझ नहीं आती। तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई सी, तो नवी बाइबल पढ़ी सी, क्या की बाइबल ही मैं हुण जो दोबारा पढ़ी फिर समझ आया कि नहीं ये यहूदा दा राजा है, ये इजराइल दा राजा है, ये यहूदा दा राजा है, इजराइल दा, क्योंकि दो दो डिवाइडेशन हो गया से ना इजराइल। बाद चो कई चीज़ां नहीं समझ आंदियां, जिहड़ी मैनूं चीज़ां कई नहीं समझ आंदी सी, मैं क्वेश्चंस मांग करदी सी, परमेश्वर कहंदे सी हले समा नहीं आया तेरा समझण दा। कोई आयत मैनू 10 साल बाद समझ आई, कोई आयत मैनू 5 साल बाद समझ आई, पर मेरी तो आदत सी पेंसिल ना क्वेश्चन मार्क कर देना, समझ नहीं आई अगे वध। परमेश्वर कहते इत्थे रुकी ना रहे, अगे वध जा हुण, क्योंकि सानू चीज़ां समझ नहीं आती सी, उत्थे असीं बैठे रहंदे, समझ नहीं आई। पर परमेश्वर कह रहे सी नहीं समझ आई, कोई नहीं अगे वध, हले समा नहीं आया इस चीज़ नूं समझण दा। 3 साल बाद जो 4 साल बाद मैच्योर हो जाएंगी, तो कलाम ये चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, हालेलुया। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है। सानू प्रभु यीशु मसीह ने हुणी असी 15 अध्याय दी 16 आयत, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। इस आयत नो इहदे नाल असी जोड़ सकते हैं। लिखिया ना जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, प्रभु यीशु मसीह नु पिता परमेश्वर यहोवा ने जगत च भेजा, वैसे ही मैंने भी इन्हें जगत में सानू सुसमाचार सुनाने लई परमेश्वर ने भेजा है। साडा मकसद है इस जगह ते, इस धरती दे उत्ते, इस ऑल्टर दे उत्ते जो बैठे सारियां दी जिंदगी च एक मकसद है। सीरियस अपनी लाइफ नु सीरियस लो। लिखे ना, फिर पढ़न जा रही है, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है। किस लिए भेजा है? सोच रहा आज बैठ के, परमेश्वर ने मैंने क्यों चुने हैं? फल लेके आओ, तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। और उनके लिए उन्हें और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं। प्रभु यीशु मसीह संसार दे विच रह के अपने आप को पवित्र करते रहे हैं, पवित्रताई दी चाल चलते रहे हैं कि मैं अपने आप को होर पवित्र करदा है, मैं अपने आप को बलि कर दिंदा है, पवित्र करता हूं, ताकि वह भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं, सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। पवित्र बनो, सोचा नु पवित्र करो, अपने आप नु पवित्र करो। पहला थिस्सलुनीकियुस ओदा 4 अध्याय 7 आयत नु पढ़ांगे लास्ट। 4 अध्याय 7 आयत नु। क्यों जो परमेश्वर ने लीके लिए नहीं, सो पवित्रताई विच सद्या। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, पापी बनाने नहीं, पापियां दुष्टां दी जगह स्वर्ग दे विच नहीं है, उन्हां दी जगह दे विच नहीं है, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। अगर असी ड्रिंक करते हैं, नशा करते, कुछ भी करते हैं, कोई भी करते, पर पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने सानू बुलाया। जे असी पवित्र नहीं आ ते पवित्र बनिए।
सच्चाई ते चलिए, तोबा करिए, सुसमाचार सुनाइए। परमेश्वर ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਾਸ ਹੈਗਾ ਇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਵੇਦਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ? किसी का पाप उठाओगे? नहीं ना। पवित्र बनो जैसा प्रभु यीशु मसीह लास्ट किया, उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र कर देता हूं। मैं निछावर कर देना, अपने आप को मार देना, खत्म कर देना। स्वर्ग सिर्फ पवित्र लोग जा सकते हैं। अगर दुष्ट जान लग पे ना तो सारा स्वर्ग ही भर जाए। हालेलुया। लिखे ताकि वह भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। सत्य न जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, पवित्र करेगा। जब ने भी पढ़ दी थी, मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करते हैं। किन्हां ਲਈ विनती कर रहे हैं? ਸਾਡੇ ਲਈ। और जो ਸਾਡੇ द्वारा ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ वचन ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ विनती कर रहे हैं। मेरे लिए तो याजक लिए तो विनती कर ही रहे हैं। याजक ऊपर याजक था ना, याजक लिए तो विनती कर ही रहे हैं, अपने खास चेले लिए तो विनती कर रहे हैं, पर कह रहे हैं मैं, परंतु उनके लिए जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करते हैं, जो साडे वचन के द्वारा जो ਅਸੀਂ कुछ कह देंगे विश्वास करते हैं, परमेश्वर उन्हां ਲਈ भी विनती कर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ एग्जाम्पल मेरी सोनिया का कहना मनिया, मेरे मैं जो सिखाया उन्होंने सीखिया, मैं उन्होंने लिए भी दुआ करता पे जो चलते पे है ना, उन्होंने लिए भी विनती करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। समझ आ गई? हुण कितनी वड्डी गल है कि प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा पढ़ना, ये तुहानू एक बार समझ नहीं आना क्योंकि बड़ा वो है, ठीक है। इन्हू दोबारा पढ़ना, खुदा इस कलाम के द्वारा तुहानू ब्लैस करन। एक कलाम ही दी रूपी पट्टियां के उपर लिखा जाए, कोई भी अंधकार दी शैतान तक इस कलाम नू चुरा ना सके, यीशु मसीह नासी दे नाम दे विच। और मैं थैंक्स करदी हां कि इस कलाम के द्वारा एक होर चीज सीखी कि परमेश्वर साडे लई निवेदन विनती प्रार्थना करदे है, जो स्वर्ग च है साडे लई प्रार्थना करदे कि इन्हू एक मौका होर दे दे, एक मौका होर दे दे प्रभु, एक मौका होर दे दे कि मैं नहीं चाहता ये नाश होए। प्रभु कहते मैं नहीं चाहता नाश होए, इसलिए अपने आप को पवित्र करो। जिन्होंने गलती पाप की है परमेश्वर तो फिर एक बार तोबा करो कि परमेश्वर माफ कर, मैनू ग्रहण कर, यीशु के नाम विच आमेन। गॉड 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 ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। खुदा ब्लेस कर अपने नाम और अपने विश्वास के विच प्रदान, यीशु के नाम।